ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان کو آج آگرہ جانا تھا۔ ان کے پروگرام میں تاج محل کا دیدار شامل تھا 12 اکتوبر کو، لیکن اچانک ان کی پروٹوکول ٹیم نے اس پروگرام کو کینسل کر دیا۔ اسی طرح کل دارالعلوم دیوبند میں بھی ان کا پبلک پروگرام چند منٹ پہلے ہی کینسل کر دیا گیا۔ اس کے پیچھے کی اصل وجہ کیا ہے، اس پر اس ویڈیو میں تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ RSS کے ایک پروگرام میں شرکت کی ہے طالبان رہنما مولانا امیر متقی خان نے، اور اس پروگرام میں شرکت کے بعد ہی کل 11 اکتوبر کو دارالعلوم دیوبند کے لیے وہ روانہ ہوئے تھے۔ اس پر بھی ہنگامہ برپا ہے اور RSS BJP کو بھی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ادھر خواتین کو پریس کانفرنس سے دور رکھنے کا جو معاملہ تھا، پچھلے 2 دنوں سے لگاتار اس پر ہنگامہ جاری ہے۔ راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی نے بھی اپنا اس پر رد عمل دیا ہے۔ مہوا موئترا کا بیان سامنے آیا۔ اس کے علاوہ بھی کئی بڑے بڑے لوگوں نے BJP کو، RSS کو بھی گھیرا ہے، طالبان کی حکومت کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اور اب انڈین ایکسپریس کا دعویٰ یہ ہے کہ طالبان نے اس پر وضاحت دی ہے، لیکن جس طرح اپوزیشن کی طرف سے سرکار پر اٹیک کیا گیا، اس کے بعد سرکار کو بھی دباؤ میں آنا پڑا اور سرکار نے اس پوری پریس کانفرنس سے پلہ جھاڑ لیا۔ سرکار کی طرف سے ایک نئی وضاحت سامنے آئی، حالانکہ اس وضاحت کو بھی بہت سارے لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ آئیے آپ کو تینوں معاملہ تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آگرہ دورہ کے بارے میں۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولانا امیر متقی خان 12 اکتوبر کو آگرہ جانے والے تھے اور ان کا قافلہ روانہ ہونے والا تھا، جہاں ان کا قیام ہے۔ کچھ ہی سیکنڈ پہلے ان کی پروٹوکول ٹیم نے، منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے اس دورے کو کینسل کر دیا اور کنفرم بھی کر دیا گیا ہے کہ اب وہ تاج محل نہیں جائیں گے۔ لیکن کیوں کینسل کیا گیا، آفیشیلی اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی جا رہی ہے۔ کل اسی طرح دارالعلوم دیوبند جب 11:30 بجے پہنچے تھے مولانا امیر متقی خان، اور وہاں وہ سب سے پہلے دارالحدیث میں گئے۔ انہوں نے حدیث شریف کی سند کی اجازت لی، اس کے بعد مہمان خانے میں گئے اور دوبارہ ان کا پروگرام ہونا تھا، پبلک سے، عوام سے ان کو خطاب کرنا تھا۔ پوری تیاری ہو چکی تھی، میڈیا کا وہاں جماورہ بھی تھا، لیکن پرشاسن نے اور کہا گیا کہ پہلے DM کی طرف سے اجازت نہیں دی گئی، پھر کہا گیا کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز نے، ان کی پروٹوکول ٹیم نے اس پروگرام کی اجازت نہیں دی ہے۔ مولانا امیر متقی خان کہتے رہے بار بار کہ یہ ہم مدرسے والوں کا معاملہ ہے، اتنا آپس میں چلتا رہتا ہے، بھیڑ اکٹھا ہو جاتی ہے، کوئی بڑا ایشو نہیں، آپ ہمیں جانے دو، ہماری دلی خواہش ہے، اسی لیے ہم اتنے دور سے آئے ہیں۔ لیکن ان کی پروٹوکول ٹیم نے کہا کہ نہیں، اگر کچھ بھی ہو جائے گا تو معاملہ بہت بڑا ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا جو ایڈمنسٹریشن ہے، وہاں کی جو انتظامیہ ہے، اس کی بھی کوئی بات نہیں مانی گئی۔ سوشل میڈیا پر اس پر بھی ہنگامہ کیا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے چاہنے والوں نے بھی لکھا کہ کیا کسی باہر کے مہمان کا کوئی پروگرام طے ہے اور اس کو یہاں کی پولیس پرشاسن یا لوکل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کیسے کینسل کیا جا سکتا ہے؟ پھر بعد میں وضاحت آتی ہے کہ پروٹوکول ٹیم کی طرف سے کینسل کیا گیا، DM کی طرف سے کینسل نہیں کیا گیا، نہ DM کا یہاں زیادہ پر چل رہا تھا۔ بہرحال جو اصل وجہ سامنے آئی وہ یہ ہے کہ جس طرح بھیڑ اکٹھی ہو گئی اور جس طرح پورے انڈیا میں طالبان رہنما کو لے کر عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے، محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور جو طالبان کے تعلق سے نریٹو بنایا گیا تھا وہ پورا نریٹو خارج ہو چکا۔ لگاتار طالبان کے نام پر بھارت کے مسلمانوں کو ڈرایا گیا، دہشت گرد بنا کر پیش کیا گیا، جیلوں میں بند کیا گیا، اور بھارتی مسلمانوں کی جو ایک امیج بنائی گئی دہشت گردی والی، آتنکوادی والی، تو سب سے زیادہ اس کا کنیکشن طالبان سے جوڑا گیا۔ لیکن آج جب طالبان کے وزیر خارجہ کو، ان کے رہنما کو بھارت سرکار نے بلایا ہے، ان کو دعوت دیا ہے، ان کا ہر جگہ شاندار استقبال کیا جا رہا ہے، تو ایک شاندار میسج گیا کہ طالبان کے تعلق سے جو کچھ کہا گیا تھا وہ پورا فرضی تھا، جھوٹ کا پروپیگنڈا تھا، اور جن لوگوں نے یہ سب کہا تھا وہی لوگ آج اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ میڈیا کا لب و لہجہ بھی بدل گیا، اور کل کی بھیڑ کو دیکھ کر یوگی آدتیہ ناتھ کے دفتر تک کو بہت زیادہ ایکٹیو رہنا پڑا۔ ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے اور کیسے اس بھیڑ کو ختم کیا جائے۔ اس کے بعد اندازہ یہ تھا، خدشہ یہ تھا کہ جب یہ آگرہ پہنچیں گے، تاج محل کا دیدار کرنے جائیں گے تو وہاں بھی بہت بڑی بھیڑ اکٹھا ہو جائے گی، بے شمار لوگ آ جائیں گے ان کی زیارت کو، ان سے ملنے کے لیے، اور جو پرشاسن ہے، جو پولیس ہے، کنٹرول نہیں کر پائے گی۔ اس لیے آج کے بھی اس پروگرام کو کینسل کرنا پڑا۔ بہت سارے باہر کے مہمان آتے ہیں، ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں،
अमेरिका के सदर तक ताजमहल का दौरा करने जाते हैं। ट्रंप भी विजिट करने गए थे। और जो भी दुनिया के किसी भी बड़े देश का कोई बड़ा सरबराह भारत आता है और भारत में अगर वो कहीं तफरीह करने जाता है, किसी इमारत को देखने जाता है, तो उसमें सबसे पहली इमारत या सबसे ज़्यादा जिस इमारत को लोग देखने जाते हैं वो है ताजमहल, फिर हुमायूं का मकबरा या कोई और इमारत, इंडिया गेट या इन लोगों की जो बनाई गई इमारतें हैं उनमें से किसी को बाहर के जो मेहमान हैं वो देखने नहीं जाते। और ये ताजमहल की ताकत, मुग़ल बादशाहों का जलवा आज भी बरकरार है। लेकिन जब दुनिया भर के डेलीगेट्स और मेहमान ताजमहल को देखने जाते हैं तो जो पब्लिक होती है, जो आवाम होती है, उनका उसमें इंटरेस्ट नहीं होता, उनको ज़रा बराबर उसकी कोई फ़िक्र नहीं होती। आए हैं मेहमान, देखने जाएंगे, उनको प्रोटोकॉल मिला हुआ है, सुरक्षा मिली हुई है। आम आवाम उनका दीदार करने में, उनसे हाथ मिलाने में ज़रा बराबर भी कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती है। लेकिन जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने देख लिया, प्रशासन ने देख लिया कि कल देवबंद में ज़बरदस्त भीड़ थी, पूरा वेस्ट यूपी आकर इकट्ठा हो गया था, प्रशासन कंट्रोल नहीं कर सका, तो उनको लगा कि आगरा जब ये जाएंगे और जैसे ही खबर आउट होगी, मिलेगी कि आगरा पहुंच गए हैं, तो वहाँ भी चारों तरफ से भीड़ इकट्ठा हो जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और अगर किसी शिद्दत पसंद ने, किसी राइट विंग ने अगर कोई गलत हरकत की तो फिर भारत सरकार की दुनिया भर में बदनामी होगी। क्योंकि तालिबान को लेकर यहाँ की मीडिया ने जिस तरह की इमेज बनाई, जिस तरह उनकी छवि खराब की, तालिबान को दहशतगर्दों की ऑर्गेनाइजेशन यहाँ की मीडिया ने कहा। यह अलग बात है कि भारत सरकार ने कभी भी ऑफिशियली तालिबान को दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त में नहीं रखा है, बात हम सभी के इल्म में होनी चाहिए। यह अलग बात है कि प्रशासन ने तालिबान के नाम पर बेशुमार लोगों को गिरफ्तार भी किया। पिछले वीडियो में मैंने डिटेल्स में बताया था, उसे ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ उसके बारे में बताऊँगा तो वो बात रिपीट हो जाएगी, उसका तकरार हो जाएगा। तो अब प्रशासन को डर ये लग रहा था कि जब ये आगरा पहुंचेंगे, भीड़ इकट्ठा होगी, काबू करना मुश्किल होगा, या कोई शिद्दत पसंद, कोई बजरंग दल का आकर के हमला करने की कोशिश करे, कुछ भी ऐसी हरकत करे, तो इस वक्त भारत का अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ता बेहतर हो रहा है और ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसमें खलल आ सकता है, उसमें रुकावट पैदा हो सकती है। इसलिए उनके विजिट को कैंसिल कर दिया गया, उनको परमिशन नहीं दी गई। ये वजह बाज़ एक्सपर्ट के ज़रिए बताई जा रही है, लेकिन ऑफिशियली जो वजह है बताई नहीं गई है। लेकिन उमूमन इसी तरह की वजह होती है और इस पर पर्दा डाला जाता है, क्योंकि प्रशासन की नाकामी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की नाकामी होती है कि आप किसी को मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। और आइए बात करते हैं RSS के यहाँ जाने की। RSS का एक थिंक टैंक है दिल्ली में जिसका नाम है विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये थिंक टैंक है जहाँ रिसर्च होता है, जहाँ पॉलिसी बनाई जाती है कि भारत में RSS की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, देश का सिस्टम कैसा होना चाहिए। और ये RSS का ही थिंक टैंक इदारा है। अब इस इदारे में कल यानी 11 अक्टूबर को एक प्रोग्राम हुआ और उस प्रोग्राम में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान चीफ गेस्ट के तौर पर मौजूद थे। दूसरे RSS के रहनुमा भी वहाँ मौजूद थे। उसके अलावा बहुत सारी ख़वातीन भी तस्वीर में नज़र आ रही है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रोग्राम में मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान ने भारत और अफ़गानिस्तान के दौरे पर बातचीत की। दोनों मुल्कों में तारीख़ी और सकाफ़ती रिश्ते हैं, इस पर भी उन्होंने खुलकर इजहार किया। उसके अलावा उन्होंने टैगोर की कहानी भी सुनाई, जिसको काबुल कहानी के नाम से जाना जाता है। RSS के जितने वहाँ बड़े बड़े राइटर्स थे, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल और दानिश्वर थे, थिंक टैंक थे, उन सभी ने भी मुसाफा किया मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान से, गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया और कहा कि हम लोगों को एक होने की ज़रूरत है, मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। जब मौलाना अमीर मुत्तकी ख़ान स्पीच दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, तो RSS के बड़े बड़े आइडियालॉग बैठ कर वहाँ तालियाँ बजा रहे थे और वो सब एक मैसेज दे रहे थे कि अब तालिबान से हम रिश्ता रखेंगे, ये हमारी ज़रूरत है। उसके बाद ही अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा वहाँ से निकलते हैं और दारुल उलूम देवबंद के लिए जाते हैं। अब सोशल मीडिया पर एक हंगामा भी बरपा है कि कल तक तालिबान को जिस घटिया नज़र से यहाँ के लोग देख रहे थे, यहाँ की मीडिया देख रही थी, यहाँ के लोग उस पर तनकीद कर रहे थे, आज उनके साथ तुम बैठे हो, उनको सम्मान देना पड़ रहा है, तो आखिर तुम्हारी मजबूरी क्या है? क्यों झुकना पड़ा? सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? और बीजेपी सरकार के पास कुछ भी जवाब नहीं है, महज इन तमाम सवालों के जवाबों को टाला जा रहा है। और अब पिछले 2 दिनों से जो मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है, तालिबान के वज़ीर ख़ारजा 9 अक्टूबर को दिल्ली पहुँचे, उनका शानदार इस्तकबाल किया गया, खैर मकदम किया गया। उसके बाद 10 अक्टूबर को यहाँ के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से उनकी मुलाकात हुई और एक बायलैटरल 10 पॉइंट पर बयान भी उनका सामने आता है। उसके बाद उन्होंने
काबुल एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहाफ़ियों से खिताब किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब तस्वीरें सामने आई तो देखा गया उसमें एक भी खातून जर्नलिस्ट नहीं है, और उसके बाद ख़वातीन जर्नलिस्ट ने उस पर रिएक्शन दिया, एतराज़ किया और कहा कि भारत सरकार की नाक के नीचे तालिबान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यहाँ भी उन्होंने अपने तालिबानी एजेंडा को नाफिज कर दिया, और भारत सरकार ने ऐसा करने से नहीं रोका। आखिर मोदी सरकार की ऐसी मजबूरी क्या है तालिबान के सामने सरेंडर करने की? औरतों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे दूर रखा जा सकता है? ये खबर पहले सामने आती है कि तालिबान ने अपनी एम्बेसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बाज़ाब्ता शर्त रखी गई थी कि किसी भी खातून जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने की इजाज़त नहीं होगी। और जैसे खबर सामने आती है, एडिटर्स ऑफ गिल्ड ने सख्त रिएक्शन दिया और कहा ये जो वाक़या है ये इंतहाई इम्तियाज़ पर मबनी है और नाकाबिल कबूल है। वियना कन्वेंशन के भी ख़िलाफ़ है, जहाँ कहा गया कि जब भी सफारती कोशिशें होगी तो वहाँ मीडिया में भी सिनफी इम्तियाज़ को जवाज़ नहीं दिया जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है और सभी के लिए एक जैसा सलूक करना होगा, इसलिए नाकाबिले बर्दाश्त है। इंडियन वोमेन प्रेस क्लब ने भी अपना एक रिएक्शन दिया और उसने कहा कि हुकूमत हिंद से मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान के सफारत खाने से रब्ता करे और कहे कि आइंदा जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो तो उसमें ख़वातीन को उससे दूर ना रखा जाए बल्कि ख़वातीन को भी बुलाया जाए। उसके बाद राहुल गांधी जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने बाज़ाब्ता सख्त रिएक्शन दिया और देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे देश में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वहां से ख़वातीन सहाफ़ियों को दूर रखा जाता है। आखिर हमारा देश क्या मैसेज दे रहा है? औरतों के ताल्लुक़ से हम क्या पैगाम दे रहे हैं और आपने कैसे ऐसा होने दिया? राहुल गांधी के जो मुकम्मल ट्विटर पर वर्ड्स है उसमें वो लिखते हैं, जब आप ख़वातीन सहाफ़ियों को अवामी फॉर्म से खारिज होने देते हैं तो आप मुल्क की हर औरत को ये पैगाम देते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए कमज़ोर हैं, यानी उनको मजबूत होने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने आगे लिखा, हमारे मुल्क में ख़वातीन को हर जगह बराबर शिरकत का हक़ हासिल है। आपकी खामोशी नारी शक्ति के नारों की हकीकत को बेनकाब करती है। राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट किया और वज़ीर आज़म मोदी को भी उन्होंने खिताब करते हुए उनसे वजाहत तलब की और कहा, हमारे मुल्क की बासलाहियत ख़वातीन की तौहीन कैसे होने दी गई? किसने इसकी इजाज़त दी? भारत की महिलाएं इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी और फ़ख्र हैं और इसका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महुआ मोइत्रा जो टीएमसी से एमपी है बंगाल से और संसद में पार्लियामेंट में अपनी तकरीर की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहती है, उन्होंने भी ट्विटर पर इस वाक़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा, मैं हैरान हूँ कि ख़वातीन सहाफ़ियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस से खारिज कर दिया गया। मर्द सहाफ़ियों को चाहिए था कि वो उस वक्त वॉक आउट करते जब उन्हें पता चला कि ख़वातीन को इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन ये लोग वहाँ पर बैठे रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? और भी बहुत सारी एक्टिविस्ट ने, बहुत सारे जर्नलिस्ट ने इस पर रद्द अमल दिया। कुछ लोगों ने लिखा कि तालिबान ने जिस तरह अपने एजेंडा को अफ़गानिस्तान में नाफिज किया, औरतों को दूर रखा हुआ है, उसी तरह उन्होंने दिल्ली में भी आकर कर लिया। और हमारी सरकार की आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि उनको तालिबान के सामने झुकना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा? इसके बाद ये मामला इतना बढ़ा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी भारत की वजारत खारजा का एक बयान सामने आता है जिसमें कहा गया कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री से ज़रा बराबर भी कोई ताल्लुक़ नहीं था और न ही भारत का इसमें कोई किरदार था। काबुल की एम्बेसी में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो दिल्ली में है और हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया, इस तरह की तमाम तनकीदों का जवाब दे दिया। अब उसके बाद बारी थी कि सवाल किया जाए अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से कि उन्होंने क्यों औरतों को नहीं आने दिया। जब वो दारुल देवबंद में थे, मैं भी वहीं पर मौजूद था और मीडिया को उन्होंने 1 से 1.5 मिनट की बाइट दी, क्योंकि सहाफ़ियों से बातचीत करने पर भी उनकी प्रोटोकॉल टीम ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कल देवबंद में पाबंदी लगा दी थी। हालांकि वो सहाफ़ियों से दारुल देवबंद के गेस्ट हाउस में बातचीत करना चाह रहे थे, वो परेशान थे, लेकिन यही कहा गया कि हंगामा बहुत ज़्यादा होगा, मत बोलिए। और उसके पीछे की एक वजह यह भी थी कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में औरतों को नहीं बुलाया गया, भारत सरकार को लगातार टारगेट किया जा रहा था, तनकीद हो रही थी, कुछ भी जवाब नहीं था, तो वहाँ भी उनको मना कर दिया गया, क्योंकि हो सकता था कि फिर यही सवाल उठता। और जब उन्होंने 1 मिनट की बाइट दी तो अगला सवाल एक पत्रकार ने उनसे यही कर दिया कि आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार को आने से क्यों रोका, उसकी क्या वजह थी? वहीं पर एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं शोएब रज़ा, इंडिया टीवी में काम करते हैं, उन्होंने अपने कलीग को कहा कि अरे महिला ये नहीं समझेंगे, महिला मत बोलो, खातून बोलो। अब ज़रा उनका ये देखिए। महिला पत्रकारों की एंट्री नहीं हुई है,
महिला पत्रकारों की एंट्री, महिला पत्रकारों की एंट्री क्या सर? महिला नहीं समझते, वो खातून बनते यार। बोलो ना फिर। बहरहाल वहाँ पर अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को इस सवाल का भी जवाब नहीं देने दिया गया और सहाफ़ियों को फौरी तौर पर प्रशासन ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से पीछे हटा दिया और कहा बस हो गया। उन्होंने दारुल देवबंद आने की जो वजह थी वो आपसे बता दिया है, अब कोई और सवाल जवाब नहीं होगा। उसके बाद देर रात को अफगानिस्तान की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से एक वजाहत सामने आती है और कहा जाता है कि उन्होंने जानबूझकर औरतों को बाहर नहीं किया था, न औरतों पर पाबंदियां लगाई गई थी, बल्कि उनकी एम्बेसी ने जिन लोगों को, उनकी टीम ने जिन सहाफ़ियों को मदऊ किया था, इनवाइट किया था, उनमें इत्तेफाक से किसी खातून का नाम शामिल नहीं था। लेकिन ख़वातीन के आने पर वहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, पाबंदी नहीं थी, बस तकनीकी तौर पर कोई खातून शामिल नहीं हो सकी। उसके बाद इस वजाहत को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने ये वजाहत करके आगे बढ़ने की कोशिश की। उसके बाद आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट शाये किया और उसमें बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें उन्होंने ख़वातीन जर्नलिस्ट को भी बुलाया है और कहा कि उस दिन भी उन्होंने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। हालांकि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें ख़वातीन जर्नलिस्ट को बुलाया गया, उस हवाले से कोई अपडेट सामने नहीं आई है। कल जब दारुल देवबंद में पूरे देश की मीडिया पहुंची हुई थी तो वहां भी दारुल देवबंद में अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का इजलास होना था और देश भर की मीडिया वहां पहुंची हुई थी। वहां मीडिया इदारों ने, तमाम टीवी चैनलों ने अपनी ख़वातीन जर्नलिस्ट को नहीं भेजा, वरना जहां कहीं भी कोई प्रोग्राम होता है या अपनी ख़वातीन जर्नलिस्ट को भेजते हैं। सिर्फ इतने बड़े मजमा में एक खातून जर्नलिस्ट नजर आई, वो भी दूर बैठी थी और वो प्रोग्राम के नज़दीक जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। हालांकि जब मीडिया ने, पीटीआई ने, इंडियन एक्सप्रेस ने वहाँ के मीडिया इंचार्ज अशरफ उस्मानी से सवाल किया और कहा क्या जिस तरह दिल्ली में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के आने पर पाबंदी थी, रिस्ट्रिक्शन था, उसी तरह देवबंद में भी ख़वातीन जर्नलिस्ट के आने पर पाबंदी है, उनको इस प्रोग्राम में नहीं बुलाया जाएगा। तो वहाँ के मीडिया इंचार्ज अशरफ उस्मानी का जवाब था कि हमें ऐसी कोई गाइडलाइंस और हिदायत नहीं दी गई है, अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की ऑफिस की तरफ से भी हमें ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ना भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से हमें ऐसा कुछ कहा गया कि औरतों को नहीं आने देना है या औरत जर्नलिस्ट को यहाँ आने की इजाज़त नहीं है, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ये दारुल देवबंद के मीडिया इंचार्ज की तरफ से भी वजाहत कर दी गई थी। मौलाना अरशद मदनी से भी इस बारे में सवाल किया गया और उन्होंने भी सहाफ़ियों को जवाब दिया था। बहरहाल ख़वातीन जर्नलिस्ट को लेकर जो हंगामा बरपा था, जो इतराज़ हो रहा था, वो इतराज़ अभी तक बाकी है। लेकिन विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के प्रोग्राम में देखा जा रहा है कि ख़वातीन भी वहाँ उनके प्रोग्राम में मौजूद है और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन को बुलाया गया है। लेकिन उनके ताज महल के दौरा को जिस तरह कैंसिल किया गया है, मुझे लगता है मामला बहुत बड़ा बन सकता है, इशू भी बड़ा बन सकता है। बहरहाल अभी 16 अक्टूबर तक मौलाना अमीर मुत्तकी खान भारत में रहेंगे। उनका ये 6 रोज़ा दौरा है और पिछले 40 सालों में पहली मरतबा तालिबान के किसी अहम तरीन रहनुमा ने भारत का दौरा किया है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स को देखते रहिए और हमारी मेंबरशिप भी ले लीजिए।